بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے. باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے. سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے. یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر. ایک ہی دام، ہول سیل دام. ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد. یوکرین جنگ کے 1000 دن پورے. پوٹین نے دی نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی. کیو نے کہا رشیا کے آگے نہیں جھکیں گے. جنگوں سے گلوبل ساؤتھ کے ملک متاثر ہو رہے ہیں. کھانا، فیول، فرٹیلائزرز کی سپلائی پر اثر پڑ رہا ہے. G20 سمٹ سے وزیر اعظم مودی کا خطاب. پوٹین جلد انڈیا کا دورہ کریں گے. کرملن نے کیا اعلان. آپسی تعلقات کو مضبوط کیا جائے گا. تل ابیب حزب اللہ کے حملوں سے گونج اٹھا. عمارت تباہ، لوگوں میں دہشت، کئی زخمی. لبنان میں اسرائیل کے حملے. جنگ بندی بات چیت کے لیے امریکی نمائندے بیروت پہنچے. اسپیکر سے ملاقات. غزہ، مغربی کنارے اور یروشلم میں اسرائیلی کارروائیاں. کئی فلسطینی شہید اور زخمی. G20 سمٹ کے موقع پر انڈیا چائنا فارن منسٹرز کی ملاقات. رشتوں کو بہتر بنانے کے اگلے قدم پر بات چیت. مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی الیکشنز کے لیے تیار. بی جے پی لیڈر ونود تواڑے پر ووٹرز میں پیسہ تقسیم کرنے کا الزام. منی پور میں امن کے لیے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مداخلت کریں. کھرگے نے لکھا خط. کہا مودی کا دورے سے پرہیز سمجھ سے بالاتر ہے. چیف منسٹر منی پور استعفیٰ دیں. آئیروم شرمیلا نے کیا مطالبہ. میٹھی تنظیموں نے کہا کوکی ملیٹنٹس کے خلاف 24 گھنٹوں میں کارروائی کی جائے. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں G20 سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے گلوبل ساؤتھ کے مسائل کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ کھانا، فیول، فرٹیلائزرز کی سپلائی پر عالمی جنگوں کے برے اثرات پڑ رہے ہیں اور G20 سے انہوں نے کہا کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے ملکوں کے چیلنجز کو اہمیت دیں. غریبی اور بھوک کے خلاف لڑائی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے بارے میں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ پر عالمی جنگوں کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. وزیر اعظم نے انڈیا کی G20 صدارت کے دوران کیے گئے عوام سے جڑے فیصلوں کو آگے بڑھانے کے لیے برازیل کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں G20 سمٹ کا عنوان ایک زمین، ایک خاندان اور ایک مستقبل تھا. انہوں نے عالمی اداروں میں سدھار کی ضرورت پر زور دیا جن میں UN سیکیورٹی کونسل بھی شامل ہے. وزیر اعظم نے غریبی اور بھوک سے لڑنے کے لیے انڈیا کی کوششوں کو نمایاں کیا. G20 سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں کی. ان میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز شامل ہیں. مودی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ بھی غیر رسمی ملاقات کی. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مودی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا. G20 سمٹ 2 دن جاری رہا. ریو ڈی جنیرو سے وزیر اعظم گیانا کے لیے روانہ ہو گئے جو کریبیا کا ملک ہے. مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں. اس سے پہلے وہ نائجیریا گئے. گیانا میں وہ معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کریں گے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے G20 چھوٹی کانفرنس کے موقع پر عالمی چیلنجز کو حل کرنے اور امن قائم کرنے پر زور دیا. فیصل بن فرحان نے G20 میں سعودی ڈیلیگیشن کی قیادت کی.
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही इंडिया का दौरा करेंगे। क्रेमलिन ने मॉस्को में ये ऐलान किया। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली पुतिन के दौरे की तारीखों पर काम कर रहे हैं। सदर पुतिन इस दौरे के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के लीडर्स की मुलाकात पिछले महीने ब्रिक्स समिट के मौके पर रशिया के काजान शहर में हुई थी। मोदी ने इस मौके पर पुतिन को इंडिया दौरे की दावत दी थी। पुतिन के साथ मुलाकात में मोदी ने कहा था कि इंडिया का मानना है कि जंग का पुरअमन हल निकालना चाहिए। रशिया 2022 से यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है। अब मिडल ईस्ट की बात करते हैं। इसराइल का तेल अवीव शहर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया में कंफर्म किया गया कि ताज़ा रॉकेट हमले में तेल अवीव में कई लोग जख्मी हुए। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब अमरीकी नुमाइंदे इसराइल लेबनान सीज़फायर बातचीत के लिए बेरूत पहुंचे। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि तेल अवीव में कई लोग जख्मी हुए और बास की हालत नाजुक है। खबरों में कहा गया कि तेल अवीव की एक इमारत को फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें हमले से पहले और बाद में इस इमारत को देखा जा सकता है कि इस हमले में ये इमारत तबाह हो गई। इस हमले से शहर में दहशत फैल गई। एक इस्राएली शख्स ने बताया कि मिसाइल उसके घर से 10 मीटर की दूरी पर गिरा, जिससे उस पर सख्त तारी हो गया और उसके घर के शीशे भी टूट गए। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेबनान और गाजा में इसराइल के हमले जारी रहे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सेंट्रल बेरूत में इसराइल के एक हमले में 5 लोग जान बहक हुए। 8 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में लेबनान में 3,516 लोग जान बहक हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2 महीनों से भी कम वक्त में लेबनान में 200 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए हैं। अमरीकी नुमाइंदे ने लेबनान में पार्लियामेंट के स्पीकर नबील बेरी से जंगबंदी कोशिशों पर बातचीत की। अमरीकी नुमाइंदे आमोस ऑस्टिन ने इस मुलाकात को तामीरी करार दिया और कहा कि वो सीज़ फायर डील पर पहुंचने के लिए इख्तलाफ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में इसराइल के हमलों में अब तक जान बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 43,972 हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,04,008 बताई गई। पिछले 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी जान बहक हुए और कई ज़ख्मी हुए। इस दौरान कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि कई मरीजों की जानों को ख़तरा है क्योंकि इलाज की सहूलतें नहीं हैं। इसराइली फ़ौज ने यरूशलेम के करीब कलंदिया रेफ्यूजी कैंप में एक बच्चे को शहीद कर दिया। इसराइल के बलदी अहदेदारों ने कुद्स के इलाके जबल मकाबिर में एक मस्जिद शहीद कर दी। इस मौके पर इस बच्चे की शहादत हुई। मकामी सोर्सेस ने बताया कि 12 साल बच्चे को धावे के दौरान गोली मारी गई। मगरबी किनारे के जनीन में एक धावे के दौरान 3 फ़लस्तीनी जान बहक हुए। ये धावा पीर की रात किया गया। मगरबी किनारे के दूसरे मकामात से भी धावों और गिरफ्तारियों की खबरें मिली हैं। मकामी लोगों ने बताया कि जनीन शहर के करीब अशुहदा गांव में एक मकान को घेरा गया और हमला किया गया। इस मौके पर झड़प हुई। अमरीकी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस बुलाया जा रहा है, जिस पर हाल ही में रेड सी में यमन के हुसियों ने हमला किया था। अमरीकी अहदेदारों ने ये बात बताई। ये जहाज़ अगस्त में मिडल ईस्ट में भेजा गया था। ये एक तैयारा बरदार जहाज़ है। इसकी वजह नहीं बताई गई कि क्यों इस जहाज़ को वापस बुलाया गया। हुसियों के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा है कि मिडल ईस्ट के समंदरों में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया जाता रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने लेबनान के अवाम और मुज़ाहमत के लिए पैगाम जारी करते हुए ईरान की मदद का वादा किया। खामनाई ने कहा कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम एक जिस्म हैं, हम आपके दर्द और तकलीफ़ों और परेशानियों में शामिल है। आपका दर्द हमारा दर्द है। ये पैगाम ईरान के एक आलिम मीसम मुतीर ने लेबनान का दौरा करते हुए पहुँचाया। को यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर यूक्रेन ने कहा कि वो रशिया के आगे नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि उसकी जीत करीब है। रशिया यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से जारी है। 1000 दिन पूरे होने के मौके पर यूक्रेन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन कभी भी काबिज ताकत के आगे नहीं झुकेगा और आलमी कानून को तोड़ने पर रशिया की फ़ौज को सज़ा देगा। इस दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जारी एक बयान में यूक्रेन की वज़ीर खारजा एनरी सिसा ने कहा कि 1000 दिन बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे अंदेशे हैं कि अमेरिका के आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अगले साल पुतिन से बातचीत के लिए यूक्रेन पर दबाव डालेगी। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के सफ़ीर ने कहा कि पुतिन अमन नहीं चाहते।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में तब्दीली को मंजूरी दे दी है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि रशिया हमले की सूरत में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर गौर करेगा। क्रेमलिन की नई दस्तावेज एक ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका में हुकूमत बदलने वाली है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को इजाज़त दी थी कि वो रशिया के अंदर हमले करने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है जो अमेरिका ने उसे दिए हैं। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका मुसलसल यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन ऐसे इम्कानात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसी को बदलेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि तब्दीलियों का ये मतलब है कि रशियन फेडरेशन रशिया या बेलारूस के ख़िलाफ़ रवायती हमलों पर और जारहियत पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने का हक रखता है। न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी सरहद के करीब जंगल की आग की वजह से कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। फायर फाइटर्स ने इन लोगों को अपने तौर पर घर खाली करने का मशवरा दिया है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में सूखे मौसम में जंगलों में आग लगने के वाक़यात आम हैं। इंडिया और चाइना ने ईस्ट लद्दाख में फ़ौजों को पीछे हटाने के बाद ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अगले कदम के बारे में बातचीत की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ इस बारे में बातचीत की। ये दिप्सांग और डेमचोक में फ़ौजों को पीछे हटाने के बाद आला सतह का पहला राब्ता है। ये मुलाकात ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में G20 समिट के मौके पर हुई। दोनों मुल्कों ने तकरीबन 4.5 साल के अरसे के बाद पेट्रोलिंग शुरू की है। जयशंकर ने कहा कि हमने हाल ही में इंडिया चाइना सरहद पर फ़ौजों को पीछे हटाने के मामले में प्रोग्रेस को नोट किया है और आपसी ताल्लुकात के बारे में अगले कदम पर ख़यालात का तबादला किया। इसके अलावा हमने आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत की। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस और झारखंड के असेंबली इलेक्शंस के दूसरे मरहले के लिए 4 शंबे को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप का मुकाबला, कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के दरमियान मुकाबला है। महाराष्ट्र में 1 मरहले में वोटिंग हो रही है। झारखंड में दो मरहलों में वोटिंग हुई है, जिसका दूसरा मरहला 4 शंबे को है। झारखंड में बीजेपी का मुकाबला जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के इत्तेहाद से है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों पर पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप के दरमियान असली शिवसेना कौन है, इस बारे में लड़ाई है। फिलहाल शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी की इत्तेहादी हुकूमत है। बीजेपी ने 2022 में शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर हुकूमत बनाई थी। झारखंड में जेएमएम की हुकूमत है। बीजेपी जेएमएम से हुकूमत छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ और दूसरे बड़े लीडर्स ने तल्ख मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान कई नारों पर तनाज़े पैदा हुए। असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी महाराष्ट्र में 16 सीटों पर मुकाबला कर रही है। एक ऐसे वक्त जब महाराष्ट्र में 4 शंबे को असेंबली इलेक्शंस के तहत वोटिंग होने वाली है, उससे सिर्फ 1 दिन पहले एक बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तवाड़े पर पैसा बांटने का इल्ज़ाम लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी के लीडर हितेंद्र ठाकुर ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तवाड़े महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में विरार के मकाम पर देवानता होटल में वोटर्स को पैसा दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकरे ने कहा कि बाज़ बीजेपी लीडर्स ने उन्हें बताया कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी वोटर्स पर असर डालने के लिए 5 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। मेरा ख्याल था कि उन जैसा कौमी लीडर ऐसी निचली हरकत नहीं करेगा, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ देखा। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि वो उनके और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करे। रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि जिस होटल में तवाड़े ठहरे हुए थे वहाँ पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई थी। ऐसा मालूम होता है कि होटल मैनेजमेंट भी तवाड़े और बीजेपी से मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए तवाड़े के खिलाफ एक FIR दर्ज की है, लेकिन इसका ताल्लुक पैसे की तकसीम से नहीं है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया ने एक्स पर कहा कि तवाड़े के खिलाफ FIR का ताल्लुक पैसे की तकसीम से नहीं है, जैसा कि मीडिया में दावा किया जा रहा है। इलेक्शन मुहिम खत्म होने के बाद एक और असेंबली हल्के में जाने के लिए ये FIR दर्ज की गई है। मणिपुर में बीजेपी की क़यादत वाले NDA इत्तेहाद के MLAs की एक मीटिंग में करारदाद मंजूर करते हुए जिरीबाम ज़िले में 6 सिविलियंस की हलाकतों के ज़िम्मेदार मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का मुतालबा किया गया। ये मीटिंग पीर की रात हुई, जिसमें 27 NDA MLAs ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अफ़स पर कानून पर दोबारा गौर करेगी।
सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक हंगामी पैगाम रवाना करते हुए कहा है कि मणिपुर और उसके अवाम खामोशी से तकलीफें उठा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आखिर ये बात समझ से बालातर है कि वजीर आजम मोदी क्यों मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की रियासत में अमन कायम करने के लिए सदर जमहूरिया की मुदाखलत पर जोर दिया। मणिपुर पिछले साल मई से नस्ली झड़पों का शिकार है। हालिया अरसे में वायलेंस के वाकयात में इजाफा हुआ है, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने मणिपुर के लिए मरकजी दस्तों के 5000 सिपाहियों को भेजा था। अमित शाह ने इतवार और पीर को 2 बार आला ओहदेदारों के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। हफ्ते और इतवार को कई लीडर्स के घरों पर हमले हुए थे, जिनमें चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह का घर भी शामिल है। मणिपुर में अफस्पा हटाने के लिए 16 साल भूख हड़ताल करने वाली आयरोम शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के इस्तीफे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुदाखलत का मुतालबा किया। शर्मिला ने कहा कि रियासत और मरकजी हुकूमतों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के अंदेशों को मोहब्बत से दूर करें। शर्मिला ने वार्निंग दी कि काला कानून अफस्पा फिर से लगाने से हालात और बिगड़ जाएंगे। शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह से कहा कि वो बदअमनी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करें और इस्तीफ़ा दें। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आयरोम शर्मिला ने, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी भी कहा जाता है, इस बात पर जोर दिया कि मरकज़ी हुकूमत नॉर्थ ईस्ट की कदरों, नॉर्थ ईस्ट की हमारंगी और तरीक़ों का एहतराम करे। इस दौरान मेटी तंजीमों की एक मीटिंग में एनडीए एमएलएस की करारदाद को रद्द कर दिया गया और कुकी ग्रुपों के खिलाफ फौरी ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मणिपुर अमलन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इम्फाल वैली में मीटी तबके के लोग रहते हैं जो ज़्यादातर हिंदू होते हैं, जबकि पहाड़ी इलाके में कुकी तबके के कबायली रहते हैं जो ज़्यादातर ईसाई हैं। मेटी तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कुकी मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे और इसके लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया। पिछले दिनों 3 औरतों और 3 बच्चों का अगवा किया गया था। बाद में उनकी लाशें मिली। तब से सूरत हाल बहुत नाजुक है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दुल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दुल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे। पुतिन ने दी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। कीव ने कहा रशिया के आगे नहीं झुकेंगे। जंगों से ग्लोबल साउथ के मुल्क मुतासिर हो रहे हैं। खाना, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। G20 समिट से वजीर आजम मोदी का खिताब। पुतिन जल्द इंडिया का दौरा करेंगे। क्रेमलिन ने किया ऐलान, आपसी ताल्लुकात को मजबूत किया जाएगा। तेल अवीव हिजबुल्लाह के हमलों से गूंज उठा। इमारत तबाह, लोगों में दहशत, कई जख्मी। लेबनान में इसराइल के हमले। जंगबंदी बातचीत के लिए अमरीकी नुमाइंदे बेरूत पहुंचे। स्पीकर से मुलाकात। गाजा, मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइली कार्रवाइयां। कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। G20 समिट के मौके पर इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात। रिश्तों को बेहतर बनाने के अगले कदम पर बातचीत। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार। बीजेपी लीडर विनोद तवाड़े पर वोटर्स में पैसा तकसीम करने का इल्जाम। मणिपुर में अमन के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुदाखलत करें। खड़गे ने लिखा खत, कहा मोदी का दौरे से परहेज समझ से बालातर है।
چیف منسٹر منی پور استعفی دیں، آئیروم شرمیلا نے کیا مطالبہ، میٹھی تنظیموں نے کہا کوکی ملیٹنٹس کے خلاف 24 گھنٹوں میں کارروائی کی جائے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔